This morning when I woke up, I had an epiphany. Epiphany क्या है? Epiphany is enlightenment. कुछ एक ख्याल आया मुझे, भगवान की तरफ से एक आकाशवाणी आई. क्या? अभी बताते हूँ. See, over the last few days, I have been getting a lot of doubts and pain points and complaints and all. किस चीज़ का? Students से, of course. किस चीज़ का? It's like, VA ने जीना खराब कर रखा है. Whether it's odd one out or parajumbles or paracompletion. शॉर्ट समरीज की कम कंप्लेंट्स आती हैं, बट ये बाकी जो तीन है ना, ये तो बिल्कुल ही विलन्स बने हुए हैं. सो मुझे सुबह में एपिफनी क्या आई? इट वॉज, कैन अ स्टूडेंट actually score in RCs? I mean, can a student ignore VA completely and take out all his score from RCs? And that set me thinking. उसके बाद तो मॉर्निंग का 2 घंटे I was just kind of mulling around over this. फिर मुझे लगा, yes, if a student is very good in RCs, why not? That is why I'm standing here before you right now, and I'm going to tell you in crisp points whether RC can actually save your ship from sinking. ठीक है? पहले तो आप ये सुन लो, disclaimer. बाद में मुझे blame नहीं करना. I'm not asking you to skip VA completely. Why? Because sometimes VA is very easy. In 2020 or 21, I remember students had come out of the exam hall and called me, and the first thing that they had said was, "Ma'am, VA तो बहुत अच्छा आया था, short summary भी बन गया, PJ भी बन गया, सब अच्छे थे." It can be a good day for you, or it can be a bad day. So my point over here is, in case it's a bad day for VA, crash होता है VA, then you can just take out your scores from RC. और logic क्या है इसके पीछे? ये है कि RC जो है, it gets the lion's share. 24 questions में से 16 questions, सही है? हाँ, सही है. 24 में से 16 questions RC के हैं. So, अभी एक और point logic का सुनो आप. Based on the previous year's data, 4 से 5 साल का डेटा लेकर के मैंने उस पर ये समझ के निकाला, if you solve, let's say 16 questions, पूरे 16, वैसे तो मैं जनरली नहीं बोलती हूँ कि हाँ पूरे 16 करो, लेकिन चलो, आपने VA नहीं करना है, that's your Achilles heel, you decide to go for all 16 questions आपने सॉल्व किए, उसमें से आपके let's say 14 राइट होते हैं. जनरली ये होता है कि 1-2 क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है, मेरे भी होते हैं वो. सो लेट्स से यू गेट 14 करेक्ट, ठीक है. 14 करेक्ट मीन्स आपका रफली 90% एक्यूरेसी. Don't ask me for the exact maths, but roughly I'm saying, roughly 90% accuracy. 90% accuracy can translate easily to 99 something in VARC. Yes, that is a fact. मुंह जो खुला का खुला रह गया, बंद कर लो उसको और ध्यान से आगे सुन लो. Then 16 अगर आपने अटेम्प्ट किया, उसमें से मान लो आपको 13 करेक्ट आते हैं, थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट? 98 percentile, 97 percentile. Even that's not bad for VARC, especially for people who are struggling, right? So अभी चलो आगे बढ़ते हैं जरा इसमें, और मैं आपको ये दिखा दूं मेरे पॉइंट्स क्या हैं. मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया, मैंने आपको लॉजिक दे दिया. What is this? First you need to check your questions. Always. मैंने मॉक लाइव किया था, YouTube पे है मेरे 2 मॉक लाइव सेशंस, जिसमें मैंने स्ट्रैटेजी समझाई थी मेरे स्टूडेंट्स को. उस पे आप जा करके देखो, RCs ऐसे क्लिक करके आप देख सकते हो किस किस तरह के RCs हैं. VA के क्वेश्चंस आप अब तो मिक्स आता है लास्ट ईयर से, आप क्लिक करके देख लो किस तरह के VA क्वेश्चंस है. स्क्रॉल करके देख लो जैसे भी. इफ यू फील VA इज क्रैशिंग, राइट देयर ऑन द मोमेंट, एट द मोमेंट, ठीक है, ऑन द स्पॉट आप डिसाइड करो कि आपको जाना है सिर्फ RCs में. सो चेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नेक्स्ट, इफ इट इज अ VA क्रैश डे, जस्ट गो बैक टू RCs, एंड देन आफ्टर यू गो बैक टू RCs, there has to be a strategy. You cannot do it this way that I start with RC1, then go to RC2, then to 3, 4. Nahi, it doesn't work out that way. Why? Because almost in every RC, there is one question that will eat away your time. So, I come to this point straight. What should be your strategy? So, let's say you decide to do all RCs, all 16 questions. You have to first keep a scribbling sheet ready, like I do. Click, click, click. RCs locate कर लिए, ठीक है? Genre देखा फटाफट, types of questions देखे. Based on the questions and genre put together, you decide instantly आपको कौन कौन सा RC पहले करना है, कौन सा बाद करना है. For example, I write down 3, 4, 1, 2. This is my sequence. ये मुझे याद तो रहेगा नहीं, so I write them down. Okay. Then 3, 4, 1, 2 में I go to RC, थर्ड RC. स्टार्ट किया मैंने सॉल्व करना उसको. इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई हैव टू डू ऑल 4 क्वेश्चंस. व्हाई? बिकॉज अब तो मुझे VA नहीं जाना. अरे भाई, तो पहला राउंड तो आप क्लियर करो. इमेजिन दिस वे, आप शॉपिंग के लिए जाते हो कोई मॉल,
आपने सोचा है आपको शूज लेना है, यू हैव गॉट ओनली 5,000 bucks विथ यू। अब आप शॉपिंग के लिए जब पहुंचते हो, यू सी यू नो देयर आर लाइक ग्रेट ब्रांड्स बीइंग सोल्ड एवरीवेयर। आपको वहां पे टॉमी हिलफिगर भी दिखता है, आपको नाइकी भी है, आपको वहां पे गुची भी दिख रहा है, एंड लाइक 99 स्टोर वो वाला भी है, आपको मिनीसो भी दिख रहा है। यू वांट टू गो एवरीवेयर, राइट? टिम हॉर्टन्स भी है कॉफी वाला, आपको सब जगह जाना है। यार 5,000 में सब कुछ नहीं हो सकता मेरी जान। सो आपने करना क्या है, सबसे पहले यू विल गो एंड बाय योर पेयर ऑफ शूज। चलो आप हाई फ्लायर नहीं हो, 5,000 6,000 के जूते नहीं पहनोगे, 2,000 के खरीद लिए, 2,500 के खरीद लिए, डिसेंट आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो पैसे बचे, देन यू डिसाइड, अरे भाई अब तो बच गया, अब चलो घूमता हूं, मैं घूम करके उठाता हूं जो मैं इसमें ले सकता हूं, क्योंकि आज मुझे घर जाना है ये पैसे खर्च करके। दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। पहला एक राउंड मारो, RC3, मैंने बोला था 3 4 1 2, लेट्स से RC3 में स्टार्ट किया, 2 क्वेश्चंस किया आपने। तीसरा क्वेश्चन में टाइम टेकिंग हो रहा है, 30-40 सेकेंड्स में समझ में आ जाता है ये टाइम टेकिंग है, क्या कर रहा है, गधा है, बुरा है, जैसा भी है। यू लीव इट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट RC। 2 क्वेश्चंस वहां से किए, वहां तीसरा भी अच्छा लग रहा है, तीसरा कर लिया मैंने। सो फर्स्ट RC में 2 किए, सेकेंड RC में 3 किया, थर्ड में मान लो 1 ही किया, फोर्थ में फिर 2 कर लिया। जितने बनते जा रहे हैं उतने कर लो पहले। दिस इज डन, लाइक फर्स्ट राउंड इज ओवर। देन टेक अ डीप ब्रेथ and take 30 seconds to calm your nerves. Then you say, बेटा अब तो ना मेरे पास कितना टाइम बचा है, चलो अभी भी मेरे पास 15 मिनट बचे हैं, नॉट बैड, आई कैन स्टिल पिक। कितने क्वेश्चंस हुए हैं काउंट कर लो, देख लो आप, इतने क्वेश्चंस मेरे हो गए। क्लिक एंड सेव एंड नेक्स्ट करना था आपको, कर लिया आपने। अभी भी मेरे पास 15 मिनट है, मुझे कम से कम तो भी 4 क्वेश्चंस और पिक करने हैं। गो बैक फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ शॉपिंग एंड देन यू स्टार्ट पिकिंग योर क्वेश्चंस। ट्रस्ट मी गाइज, दिस वर्क्स। ओके, इसमें एक और छोटा सा पॉइंट बताऊंगी, छोटी सी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि उनके लिए वर्क करने लगा है, बिकॉज दे हैव स्टार्टेड फॉलोइंग। मैं अपने 40 मिनट को डिवाइड करती हूँ 3 पार्ट्स में, ठीक है? 20, 10 एंड 10। सो फर्स्ट 20 मिनट्स में, लेट्स से आपने डिसाइड कर लिया 40 मिनट में सिर्फ RCs करना है, पहले 20 मिनट्स में डू द फर्स्ट राउंड ऑफ शॉपिंग, ठीक है? कामनेस आ जाएगी खुद ब खुद, यू विल फील एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, यस बीड़ू अच्छा जा रहा है सब कुछ। देन सेकेंड 10 मिनट्स में 2-3 क्वेश्चंस और उठा लिए, 2 क्वेश्चंस चलो आपने उठा लिए। थर्ड 10 मिनट्स जो आपका थर्ड पार्ट है, उसमें फिर से आपने 2-3 क्वेश्चंस उठा लिए। गिव इट द लास्ट, लाइक द बिग पुश इन द एंड, एंड एक और क्वेश्चन आपने ले लिया। मिला जुला करके आपने 15 से 16 क्वेश्चंस कर लिए। अगर 15 किए 100% एक्यूरेसी, बल्ले बल्ले। 16 किए, 2 भी रॉन्ग हो गए, तो भी मैंने आपको शुरू में उसका लॉजिक समझा दिया था। आई होप सब समझ में आ गया। दैट इज वॉट दिस सेशन वॉज ऑल अबाउट। खत्म, और कुछ यहाँ बचा ही नहीं है। इफ इट्स अ VA क्रैश सब बता दिया, लॉजिक बता दिया, हाउ मेनी सब बता दिया मैंने, हो गया कंप्लीट। बस इतना ही मुद्दा था यहाँ पर। आई होप दिस मेक्स सेंस। इसमें से जो भी आपको फायदा दे ट्राई करके देख लो ना, अभी तो टाइम है। मॉक्स और सेक्शनल्स में देख लो, अगर काम आता है आपके, वेल एंड गुड। नहीं काम आता है कोई बात नहीं, गो बैक टू द ओरिजिनल थिंग। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना।